तो lesson power sharing, I'm going to revise this chapter thoroughly, so please listen carefully. First of all, it starts with Belgium. Belgium is a small country in Europe. One more question. And it is smaller than our Haryana state. And four neighboring countries of Belgium: Netherlands, Germany, Luxembourg, and France. You have to learn these four neighboring countries of Belgium. First of all, so Belgium is the small country of Europe, smaller than our Haryana state, and population wise भी हरियाणा से half of the population in Belgium. अगर पूछा जाए तो पूछें पेपर में कि बेल्जियम को इंडिया के किस स्टेट के साथ कंपेयर किया गया, तो हरियाणा. नेक्स्ट इज आपने बताना है कि फोर कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज जो हैं बेल्जियम की: नीदरलैंड, लक्समबर्ग, फ्रांस एंड जर्मनी. ठीक. देयर वाज एथनिक वेरिएशन इन बेल्जियम एंड देयर वर टू रीजन्स: वेलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन. First of all, to ethnic variation in country, 59% were Dutch speaking, 40% French speaking, and 1% German speaking. And two regions, Flemish and Wallonia. Dutch speaking live in Wallonia, Flemish region. Dutch speaking lived in Flemish region, whereas French speaking lived in Wallonia region. How to learn this? एक easy सा method बताती हूँ. French speaking F, French F, Flemish F. तो FF इकट्ठे नहीं होने चाहिए. अगर बाय मिस्टेक आप लिख देते हो ऐसे तो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि you have written wrong. French speaking Wallonia, Dutch speaking Flemish. इस वजह से ये लर्न रहेगा. एंड इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स एथनिक वेरिएशन जो थी ना वो डिफरेंट थी. कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम पूछी जा सकती है 1 मार्क में. कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स. एथनिक वेरिएशन इन ब्रुसेल्स वाज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री. इन कैपिटल सिटी देयर वर 80% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग. सो आप इतना याद रखो, इन द कंट्री हु आर इन मेजोरिटी डच स्पीकिंग, whereas in capital city who were in majority French speaking. French speaking were rich, so government gave all the rights, all higher jobs, all the facilities, educational facilities to French speaking. This was not tolerated by Dutch speaking. So due to this there was tension. Tension was created in Belgium. But government solved the problem. As there were clashes, government solved the problem. Belgian leaders solved their problem. They followed accommodation path. And for this, they amended their constitution 4 times. From 1970 to 1993, they amended their constitution 4 times. And they made various amendments in the constitution. Now, which type of amendments were made by them? In book, how to learn this topic from the book? First of all, look here Belgium is given. यहाँ तक बेल्जियम दिया हुआ है. देन आगे श्रीलंका है. आपका कॉन्टिन्यूटी में चैप्टर नहीं है, आपको पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है. अगर बेल्जियम आपको कंप्लीट करना है, देन अकोमोडेशन पाथ इज गिवन हियर. कॉन्टिन्यूटी में तब होगा अगर आप ये पैराग्राफ यहाँ तक ये पढ़ के आप सीधा इधर आ जाओगे. आप बीच वाला भी छोड़ दो, ये पढ़ोगे ये वाला अकोमोडेशन. ये पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर गिवन 1 2 3 एंड 4. यहाँ तक आपका बेल्जियम है. ठीक है, बीच में जो मैंने छोड़ा है वो श्रीलंका है. कॉन्टिन्यूटी में चैप्टर नहीं है, बट आपको कॉन्टिन्यूटी में ही करना है.
तो आपको बताना है कि दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, 1972, 1993, एंड changes made in the constitution were as under. First, equal representation was given to French speaking in the country, though they were in minority. आपको याद होगा कंट्री में who were in majority? Dutch speaking. तो equal representation French speaking को दी गई in the country, though they were in minority. सेकेंड पॉइंट में आप बता सकते हो इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू डच स्पीकिंग इन द कैपिटल सिटी, दो दे वर इन माइनॉरिटी, क्योंकि कैपिटल सिटी में ब्रुसेल में हु वर इन माइनॉरिटी? डच स्पीकिंग. तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू डच स्पीकिंग इन द कैपिटल सिटी, दो दे वर इन माइनॉरिटी. ठीक. फिर आप थर्ड पॉइंट में बता सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर्स विद स्टेट गवर्नमेंट. And in fourth, you will write third kind of government was set up in Belgium. That was community government based on language. So these are the 4 points which Belgian leaders followed after the amendment of the constitution. In this way, they solved their problem by following accommodation path. Belgian leaders shared their powers. तो उन्होंने अपनी पावर शेयर कर ली एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. अब बेल्जियम में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होएगी. स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, स्मॉलर देन अवर स्टेट ऑफ हरियाणा, 4 कंट्रीज नेबरिंग, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, 2 रीजन्स वेलोनिया एंड फ्लैमिश. वेलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग, फ्लैमिश डच स्पीकिंग. इन कंट्री Dutch speaking 59%, French speaking 40%, German speaking 1%. In capital city 80% French speaking and 20% Dutch speaking. Out of these, who were rich? French speaking. So government gave all powers, all rights, all facilities to French speaking. This was not tolerated by the people of other communities such as Dutch community. They created problems and there were clashes. But Belgian leaders, they solved the problems by following accommodation path. They shared the powers. They amended their constitution. How many times? 4 times. 1972, 1993. And what were the changes made by them after the amendment? वो अपने 4 points लिख देने हैं. Equal representation was given to Dutch speaking in the capital city, though they were in minority. Equal representation was given to French speaking in the country, though they were in minority. Central government shared its powers with state government. Third kind of government was set up based on language, that was community government. So in this way, Belgian leaders solved their problems. Next is about Sri Lanka. Sri Lanka got freedom in 1948. आपको इतना याद रखना है, इंडिया के 1 साल बाद श्रीलंका को फ्रीडम मिली है. ठीक है, अब ये कभी गलत नहीं होगा. श्रीलंका got freedom in 1948. Learn it for 1 mark. And there was ethnic variation. Sri Lanka में भी ethnic variation थी. 74% Sinhalas, 18% Tamils. Tamils were further divided into 2 parts. 13% Sri Lankan Tamils, 5% Indian Tamils. 74% Sinhalas, 18% Tamil, 7% Christians, 1% Muslims. अपने आप काउंट करो, 100 हो जाएगा. 74% Sinhalas, 18% Tamils, 7% Christians, 1% German speaking. Oh, sorry, 1% Muslims. So this was the ethnic variation of Sri Lanka. तो श्रीलंका में क्या हुआ? In 1956, government passed an act. Sinhala leaders in 1956 passed an act. In 1956 they passed the act. By this act, अब उस act के according government ने क्या किया? Government ने सारी facilities, all the rights, all the higher jobs, all the educational facilities were given to Sinhalas. They followed majoritarism.
and in this way they dominated the Tamils who were in minority. So this was not tolerated by Tamils. Sinhala leaders made Sinhala as official language. By this act, 1956 act, they made Sinhala as official language, and they made Buddhism as the main religion of Sri Lanka because Sinhalas were Buddhist. Tamil were Hindus और Muslims. क्रिश्चियन तो क्रिश्चियंस ही थे, तो 1% मैंने वैसे ही मुस्लिम्स बोले हैं, तो इट मीन्स सिन्हालास जो थे वो बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिज्म बिकेम द मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका. दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय तमिल्स. दे डिमांडेड that with Sinhala, Tamil should also make official language. But Sinhala leaders ignored them. And there were clashes between Tamils and Sinhalas. Tamil protested. They demanded Elam. Elam means separate state for Tamils. So this led to civil war in Sri Lanka. Many people lost their lives and huge property destroyed due to Majoritarianism. Sri Lankan leaders refused to share their powers and they followed Majoritarianism. So this led to civil war. अगर पूछा जाए what do you mean by civil war? So civil war means when there is a war between people of different social groups of the same country. कंट्री के अंदर ही लोगों की आपस में लड़ाई हो जाना, बाहर से नहीं हुई, कोई भी दूसरी कंट्री का कोई रोल नहीं है. When there is war between the people of different social groups of the same country, तो वो क्या होती है? सिविल वार. सिविल वार कहाँ पे हुई? श्रीलंका. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, विच पाथ इज बेटर, अकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म? अकोमोडेशन पाथ इज बेटर, ये पेपर में पूछा जा सकता है. विच पाथ इज बेटर एंड व्हाई? अकोमोडेशन पाथ इज बेटर और मेजोरिटेरियनिज्म. तो आपने अकोमोडेशन को कहना है, व्हाई अकोमोडेशन पाथ इज बेटर? नो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर इज शेयर्ड. वहां पे पावर शेयर होती है, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है. फिर आप बता सकते हो, हियर यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ बेल्जियम, श्रीलंका और फ्रॉम इंडिया आल्सो. इंडिया में भी पावर शेयर्ड है. इन इंडिया देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया में एक भिन्नता में एकता, भिन्नता, हम अलग होके भी एक हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. क्यों है यूनिटी? वी आर लिविंग टुगेदर इन अ सेम कंट्री इन अ पीसफुल वे. क्यों? बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने पावर शेयर की हुई है. आवर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज शेयर्ड इट्स पावर. पावर शेयर की हुई है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, लेवल्स के साथ, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ. तो हम कहेंगे कि पावर शेयरिंग जो है ना, उसके कारण चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं. तो विच पाथ इज बेटर? Accommodation path is better, and here you can give example of Belgium, Sri Lanka, and from India you can also give example, depend upon your wish. Next is why power sharing is desirable. ये कितनी बार 5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है. Why power sharing is desirable? No need to learn from the book. आपने दोनों बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों पढ़े, आपको दोनों से आइडिया हो गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू राइट 3-4 पॉइंट्स एंड देन गिव एग्जांपल. कौन से 3-4 पॉइंट्स आप लिख के एग्जांपल दे सकते हो? 3-4 पॉइंट्स वो ये आप लिख सकते हो. फर्स्ट, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. Power sharing is desirable because it reduces the chances of conflicts between the people of different social groups. It makes easy for the people of diverse group to live together in the same country. Different होके हम एक ही country में peaceful way से रह सकते हैं. ठीक है. It shares the powers. Power sharing होती है इससे, तो reduces the burden of central government. It increases the participation of people in the functioning of government. लोगों की participation government की functioning में बढ़ जाती है. तो इतने points लिखने के बाद आप यहाँ पे कह सकते हो here I want to give example. आप अपने वे से बताओ ना. I want to give example from Sri Lanka, from Belgium,
एंड फ्रॉम इंडिया, हर एक के बारे में 2-2 पॉइंट्स दे दो. फॉर एग्जाम्पल आप बेल्जियम का लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि देयर वाज एथनिक वेरिएशन इन बेल्जियम. तो अर्लियर बेल्जियन लीडर्स गेव राइट्स टू French speaking because they were rich, but there were clashes. Belgian leaders solved their problems by sharing their powers and by following the accommodation path. In this way, they maintained peace. There was second example, there was ethnic variation in Sri Lanka. Sri Lankan government followed majoritarianism and they gave all rights, all facilities to Sinhalas. They ignored others. They didn't share their powers with others. So due to this, there was civil war. एग्जाम्पल होगी ना कि वहां पे सिविल वार हुई, सिर्फ उन्होंने पावर शेयर नहीं की. इन इंडिया देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव टुगेदर इन अ सेम कंट्री इन अ पीसफुल वे ओनली बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग. सो इन दिस वे वी कैन से पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. तो ये इतना बड़ा आंसर आपका 5 नंबर का, आपको कहीं से लर्न ही नहीं करना. अपने पॉइंट्स खुद बनाओ, एग्जाम्पल अपनी मर्जी से दो, आपका आंसर अपने आप बन जाना है 5 नंबर का. अगर आप क्रैमिंग करोगे तो आपको कितने कितने अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे. नो नीड टू क्रैम. नेक्स्ट इज, अब इसके बाद आपका आ जाता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. डिफरेंट फॉर्म्स अब कौन कौन सी होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स. फिर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स. फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. फिर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स. ये आप इनके बारे में सारा एक एक पैराग्राफ लिख दोगे ना, तो ये आपका 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी. इस लेसन में से वैसे मोस्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं. इसमें से 5 जो होता है वो मोस्टली उनका फेडरलिज्म में से होता है. बट इस बार सिलेबस क्योंकि काफ़ी उन्होंने डिलीट भी किया हुआ है, तो अब पता नहीं. पॉलिटिकल पार्टी एंड फेडरलिज्म के चांसेस रहते हैं 5-5 नंबर के, बाकी 4-4, 3-3 के रहते हैं. इस बार चेंज हो सकता है पैटर्न, ठीक है. सोर्स भी आ सकते हैं इसमें से. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. अब इसमें क्या बताना है. फर्स्ट तो आप बताओगे पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स. इसमें आप बताओगे व्हेन गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर्स विद डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज legislature, executive and judiciary. In this, government share its powers with different organs such as legislature, executive and judiciary. This type of division is called, this type of power sharing is called, this type of division of power is called horizontal division of power. This is called horizontal division of power. There is separation of power. There is separation of power. In India, आप कह सकते हो कि वी फॉलो इट. इंडिया में हम ऑर्गन्स के साथ, इंडिया इज एग्जाम्पल बिकॉज इन इंडिया अवर गवर्नमेंट हैज शेयर्ड इट्स पावर्स विद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हर एक की एग्जाम्पल देनी है, तो हर एक की एग्जाम्पल इंडिया. इंडिया में हर तरह की हमारे पास पावर शेयरिंग है, तो हर एक की एग्जाम्पल क्या है, इंडिया. फिर आपने कहना पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट लेवल्स. तो इसमें आपने कहना in this government share its powers with central, state and local government. Here this type of division is called vertical division of power, and here powers are distributed from higher to lower level. And this type of division is found in India. India is example because in India we have central, state and local government. Third, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. इसमें आप बेल्जियम भी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि इन बेल्जियम, अभी आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, इन बेल्जियम थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेटअप, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज. तो हियर यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ बेल्जियम आल्सो. पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब इसमें आप बताओगे इन दिस गवर्नमेंट शेयर्ड इट्स पावर्स विद डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. India is example because in India seats are reserved for SC and STs. And here we can also give example of Belgium. In Belgium, third kind of government was set up, that was community government based on language. फिर आ जाएगा power shared by different political parties. इसमें आप बताओगे in this political parties join their hands with each other while forming government.
In India, India is an example because in India, in our country, we have sometimes, अभी तो है नहीं ना, तो इसलिए कह नहीं सकते, coalition government. Coalition government. In coalition government, political parties have to join hands with each other to show their majority. When one political party cannot show its majority, now, so political party has to join hands with other political parties to show majority and to form government. उसको हम कहते हैं coalition government. After election, जब political party अपनी majority नहीं ना show कर पाती, उसको हाफ से भी कम सीट मिलती हैं, तो अपनी majority नहीं show कर पाती, तो political party जो winner party होती है, उसको दूसरी parties के साथ hand join करने पड़ते हैं to show majority and to form government, and that is called coalition government. So coalition government is an example of the power sharing. आप कह सकते हो powers are shared by different political parties. So India is an example. In India we have pressure groups. These pressure groups do not enjoy any political power, but they can disrupt the policies made by government. ये जो बंद की कॉल आ जाती है, धरने देते हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स ही तो होते हैं. तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स, they do not have any political power, but they can disrupt the policies made by government. पावर है तो वो बैठे हैं ना आंदोलन पे, नहीं तो और डिक्टेटरियल या मोनार्की होती तो उनको राइट होता, कभी ना होता. तो इट मीन्स ये आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग करोगे, सारी एग्जांपल्स हैं. इसके बाद ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. डिफरेंशिएट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. अगर ये आ जाए तो हॉरिजॉन्टल तो आपको भी पता है, इन दिस पावर्स आर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड. उधर आप लिखोगे इन दिस पावर्स आर शेयर्ड बाय डिफरेंट लेवल सच एज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. इधर आप कहोगे देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर. उधर आप कहोगे पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल में सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है, वर्टिकल में सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस नहीं है. वर्टिकल में सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस नहीं है. एग्जाम्पल वैसे दोनों की ही इंडिया. अब एक मिनट, अगर ये नहीं आता, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए, हाउ कैन यू से देयर इज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, आपको ये व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, क्या मतलब है इसका सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. आपने कहना है उल्टा स्टार्ट करना है अपने ऑर्गन्स को. आपने कहना है कि ये जो ऑर्गन्स है ना, इनकी पावर्स जो है ना, पावर्स आर बैलेंस्ड. देयर पावर्स आर बैलेंस्ड. नो अनलिमिटेड पावर्स आर गिवन टू एनी ऑर्गन. किसी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी हुई. आप इसको डिफरेंशिएट में भी लिख सकते हो. नो अनलिमिटेड पावर्स आर गिवन टू एनी ऑर्गन वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. उधर सेंट्रल के पास ज्यादा वो है ना, आप कह सकते हो लिस्ट सिस्टम में आप कहते नहीं 97 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी पॉइंट डिफरेंशिएट में आप कह सकते हो. तो इधर आप कहोगे पावर्स आर बैलेंस्ड, नो अनलिमिटेड पावर्स आर गिवन टू एनी ऑर्गन. देयर इज सिस्टम ऑफ चेक आल्सो बिकॉज जजेस ऑफ जुडिशरी are appointed by executive and keep an eye on the functioning of legislature. Listen again. What do you mean by system of check and balance? Powers of organs are balanced. No unlimited powers are given to any organ. And आप कहोगे judges of judiciary are appointed by executive and they keep an eye on the functioning of legislature. So in this way we can say there is system of check and balance. तो अब इस लेसन का मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा. वी हैव डन ऑल द टॉपिक्स. एक एक चीज मैंने इस लेसन की करवाई है. सिविल वॉर तक जो साइड पे बॉक्स है मैंने वो भी बताएं. मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजन भी आपको पूछे जा सकते हैं. प्रूडेंशियल आप यही कह सकते हो reduces the chances of conflicts between the people of different social groups, make easy for the people of diverse group to live together in the same country. Moral में आप बताओगे it's the very spirit of democracy. It is the very spirit of democracy. अब एक मिनट, यहाँ पे ना एक्सरसाइजेज हैं, उनको एक बार देख लो. फर्स्ट इज बैक क्वेश्चंस जो है ना वो आप सुन लो. What are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example each of these.
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मैंने अभी बोले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सबकी, इंडिया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, इंडिया। प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मैंने अभी बोले, मोरल में आप यही बताओगे वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। अब ये सुनो एक मिनट, एक्सरसाइजेज इस लेसन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन। आइए एक एक्सरसाइज है, 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। ये देखो, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या बनेगा? पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट at different levels, federal government. Power shared by different social groups, बताओ, community government. Power shared by 2 or more political parties, coalition government. आपको ये 1 मार्क में एमसीक्यू में दे सकते हैं, एक दे के ये ऑप्शंस में पूछ सकते हैं आपको, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो इसलिए इनको एक बार देख लेना, ठीक है। अब ये चैप्टर टोटल कंप्लीट, मैंने एक एक लाइन थोरोली करवाई है। नो, अब डिपेंड आप पे करता है हाउ टू फॉर दिस, यू हैव टू टेक थोरो रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आज आपने इस लेसन की थोरो रीडिंग करनी है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट then you can share with me. You are most welcome, students who are sitting online, please अपनी कोई भी प्रॉब्लम है आप बताना, ओके।